योगा प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी डाइट बहुत सही हो जाती है। आप पहले बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो एंड ऑल, बट जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में आते हो ना, एक टाइम के बाद ऐसी हो जाती है कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है जंक फूड। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो ये है कि आप फ्लेक्सिबल हो इसलिए आप योगा करते हो। बिकॉज मैं भी बहुत सारे पोस्टर्स डालती हूँ तो लोग ऐसा कहते हैं कि यार तुम बहुत फ्लेक्सिबल हो इसलिए कर लेती हो, हमसे नहीं होगा। बड़े लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लेट से स्टार्ट किया बट अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे क्लास में एक लेडी है, इज अराउंड 60 years। उन्होंने जब स्टार्ट किया, उन्होंने फर्स्ट डे आके क्लास में बोला कि मैं आज तक कभी योगा नहीं की हूँ, बट आई वांट टू स्टार्ट नाउ, मुझे पता नहीं होगा कि नहीं। तो मैंने कहा ओके मैम, यू कैन ट्राई। एंड वो अभी भी क्लास में आई। मैं तो अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहती हूँ, और अगर आप भी यही चाहते हैं तो आपको योगा फॉर यूनियन नाम की एक प्लेटफॉर्म के बारे में सुनना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया मिस स्वाति ने, जो कि बेसिकली झारखंड के पाकुड़ से बिलोंग करती हैं। मिस स्वाति को योगा के ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ने प्रभावित किया है और उनके इंस्पिरेशन महेश सर हैं। स्वाति की योगा जर्नी 23 साल की उम्र में शुरू हुई। शी इज रियली पैशनेट एंड एनर्जेटिक बाय नेचर। चलिए देखते हैं कि मिस स्वाति क्या खास अनुभव शेयर करती हैं। How are you? I'm good. How are you? I'm good too. How was your day? Good. Do you like Thank you. having coffee or tea at this time? As per the weather, I would like to have cold coffee. That's great. Okay, so let's start our session Yeah, with sure. some discussion about your yoga practice and all. Okay. Yeah. Okay. So, can you share the experience that first drew you to yoga? It was back in my school days when I was in class 7th standard. Yeah. So Okay. that was when we all students were selected. Like few students were selected from my class, including me, for yoga competition. So that was the time when I started doing yoga. At that time in our school, there is no a particular yoga teacher, but there is a PT teacher who used to teach us. So that was the time when I first started doing yoga. Okay. So, can you say how did you come up with the name Yoga for Union? Yoga is a Sanskrit word. It actually derived from a Sanskrit word, means yuj. It means union with the higher conscious, higher self. So in our classes, during our satsang classes, where I used to learn yoga. So in that class, our teacher, our Guruji used to tell us that yoga is basically for the connect with our higher self. So that's what when it comes in my mind when I started looking for a page, looking for a name for my page. That's why I should not keep like ऐसा कोई नाम रखना चाहिए जो एक्चुअल में उसकी मीनिंग को दिखाता हो, राइट? तो मैंने Right. फिर इसलिए योगा फॉर यूनियन चूज किया कि एक कनेक्शन फील हो कि योगा एक्चुअल में किस चीज के लिए है। तो योगा इज नॉट ऑल अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज एंड ओनली मेडिटेशन, बट योगा इज आप कनेक्ट कर सको अपने हायर सेल्फ से। अपने कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर एक गॉड पार्टिकल होती है, तो उस Right. गॉड पार्टिकल से कुछ हायर कॉन्शियस से आप कनेक्ट कर सको। इस कारण से उसका ये नेम है योगा, यूज। तो बेसिकली योगा इसलिए कि हम यूनाइट कर सके। दैट्स व्हाई आई सेलेक्ट दैट नेम योगा फॉर यूनियन। Okay, that sounds good. Okay, then what has been your most transformative experience through yoga? I want to know both personally and professionally, and something which has been life changing. Personally, I will say my physical features, okay, like face, body, flexibility, strength. These are all we call it side effects of yoga. Like our teacher used to say, these are only the side effects of yoga, that you are getting a good body, you are getting a good physique, you are improving your flexibility, you are getting strength. So these all the things which I get personally and professionally. If I say, like, not actually professionally, it's like mentally more changes in me after practicing yoga. Like I'm practicing yoga from the last 2 years, 2.5 years actually, continuous practice.
I started my practice when I was standard 7. So at that time I was not regular, but from the last 1.5 years, like it is almost 3 now. So it's like I'm continuous, like daily practice. So there is a mental changes. So that physical and mental changes we can use professionally now. Okay, so as I had covered Mahesh sir, who belongs to Holistic Yoga. Okay, Yeah. and we come to know that you are the shish of Mahesh sir, right? So I Yeah. want to ask a question related to him. Like, I want you to throw some light on founder Mr. Mahesh sir with respect to your experience and आपका क्या इन्फ्लुएंस रहा है उनका क्या इन्फ्लुएंस रहा है आपकी लाइफ में आपकी योगा की जर्नी में. हाँ, चल मगर ये चीज कहूँ तो लाइक हाँ वो मेरे गुरु जी एंड प्लस अभी तक जो मेरी योगा की जर्नी है वो पूरा ही उनके इन्फ्लुएंस की वजह से है. बस my holistic yoga से connectivity through Instagram page. So it was like a normal ad of free classes and all, and I joined that classes. So महेश सर का है कि उनकी स्पेशलिटी बोलो या जो भी बोलो, एक उनका ऑरा ही ऐसा है कि लाइक वो क्लास में ना हर स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं, न्यू ओल्ड हो, हर किसी से. लाइक देन एक प्रॉपर आप टाइम दे रहे हो हर स्टूडेंट को, कनेक्ट कर रहे हो. सामने वाला इंसान कनेक्ट नहीं भी कर रहा है तो भी लाइक वो ट्राई करता है कि ठीक है मैं आगे से कुछ बोलूँ तो फिर वो कनेक्ट करने की कोशिश करे. लाइक बहुत सारे ऐसे इंट्रोवर्ट भी होते हैं कि नहीं कनेक्ट करते या नहीं बोलते. तो महेश सर वाज लाइक दैट कि वो कनेक्ट फील करवाते हैं. जब आप उनसे बात करोगे तो एक है ना आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहना अगर आप परेशान हो. एंड ही इज माय गुरु, इज लाइक माय अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग. लाइक मुझे कभी भी ऐसी कोई भी इश्यूज आती है तो मैं उनसे जाके कनेक्ट करती हूँ एंड ही इज लाइक गिविंग अ सॉल्यूशन. एंड प्लस उनके जो सत्संग के क्लासेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कनेक्टिंग है. प्लस वो हर समय हमें ऐसे मोटिवेट करते हैं लाइक न्यू चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए. लाइक न्यू योगा पोजेस लाइक वो डेली पोस्ट करते हैं अपने पेज पे एक न्यू पोस्टर. तो वो हमारे लिए डेली चैलेंज होता है कि ठीक है आज इसे करना, आज इसे करना, आज इसे करना. तो बहुत इन्फ्लुएंस है उनका क्योंकि वो लाइक डेली मोटिवेट करते हैं. ऐसा नहीं कि आज क्या कल क्या, वो डेली मोटिवेट करते हैं नहीं करो करो करो. Okay, so my next question to you, how did you stay inspired and motivated in yoga practices as well as in teaching? If I talk about teaching, तो टीचिंग की मोटिवेशन आती है मुझे स्टूडेंट से. ऑल्दो मैंने लास्ट 1 ईयर से स्टार्ट किया है सिखाना, बहुत ज़्यादा टाइम से नहीं सिखा रही हूँ. 1 ईयर और 7 to 8 months Okay. approx like that. So टीचिंग का मोटिवेशन मुझे आता है स्टूडेंट से बेसिकली कि जब वो हमें अप्रिशिएट करते हैं ना कि मैम आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ योगा करके, या फिर हम उन्हें जिस तरीके से सिखाते हैं वो उन्हें अच्छा लगता है. तो उनके फीडबैक्स बेसिकली मुझे मोटिवेट करते हैं टीच करने के लिए. देन जब हम टीच करते हैं ना, लाइक हम जब किसी को सिखाते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उन्हें सभी चीजें बेस्ट बताएं. तो वो बेस्ट बताने के लिए आपको सीखना पड़ता है. तो मेरे साथ बहुत सारी मतलब योगा जर्नी में ऐसा हुआ है कि बहुत सारे पोस्चर्स ऐसे हैं जो मैंने सीखा है दूसरों को सिखाने के लिए, या फिर अगर आप किसी को एक्सप्लेन करते हो तो आप उस चीज को और ज्यादा जानने की कोशिश करते हो. तो आप आगे तभी बता सकते हो जब आपको अच्छे से पता हो. तो मैंने उस चीज को बहुत ज्यादा मीन्स अपने में ये चेंज देखा है कि जब मैं टीचिंग करना स्टार्ट की हूँ योगा तो मैं और ज्यादा इंडल्ज हो गई हूँ योगा में. एंड पर्सनली तो स्टार्ट हुआ था सब कुछ डेली चैलेंज है क्योंकि आई नो योगा करना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, लेकिन उसे डेली लाइफ में डेली शेड्यूल में लाना बहुत मुश्किल है. लाइक जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मैंने बोला मैं 2 साल से कंटिन्यू हूँ. तो उसके पहले मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस करने की कोशिश करती थी बट वो कंटिन्यूएशन में नहीं आ पाता था. लाइक किया फिर थोड़े दिन गैप हो गए, फिर थोड़े दिन किया तो गैप हो गया. तो मैंने उसे ना 21 डे चैलेंज के बारे में आपने सुना होगा कि लोग ऐसे
21 डेज चैलेंजेस देते हैं। तो मैंने ऐसे कैलेंडर पे मार्क करके रखा था कि मुझे सीखना है और मैं करूंगी 21 डेज तक। फिर वो 21 डेज, नेक्स्ट 21 डेज, नेक्स्ट 21 डेज। तो एक नॉट से मोटिवेशन बट एक डिसिप्लिन है जो हमें चाहिए अगर हमें कोई कंटिन्यू करना। मेरे लिए इस मामले में लाइक डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मुझे मोटिवेटेड रखता है। Achha, okay. So my next question is, how does yoga differentiate itself from other forms of physical exercise in your perspective? So basically, yoga is not only about physical exercise, and I think this is the only thing that differentiates yoga with every physical exercise. कि अगर आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो फिजिकल एक्सरसाइज है, ठीक? लेकिन योगा इज ऑल अबाउट माइंड एंड मसल कनेक्शन। तो लाइक योगा में सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं होते, लाइक हम लाइक टचिंग फीट इज नॉट अ योगा दैट ओके Yeah. यू कैन टच योर फीट, यू कैन बेंड योर बैक, दिस इज नॉट ओनली योगा। योगा में बहुत सारी चीजें आती है। एक तो योगा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अष्टांग योगा, विन्यास योगा, फ्लो योगा, पावर योगा, हठ योगा, बहुत टाइप्स आते हैं। प्लस इंक्लूडिंग मेडिटेशन, ध्यान, समाधि, बहुत सारी चीजें होती है जो योगा में फुल इंक्लूडेड है। तो एंड अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेस की बात करेंगे तो बाकी जैसे लोग जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वहां पे आपको है कि फिजिकल एक्सरसाइजेस से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है गुड। बट योगा इज टोटली डिफरेंट। योगा से आपकी इम्यून सिस्टम बेटर होती है, योगा से आपके फेस के प्रॉब्लम्स बेटर होते हैं, आपकी फिजिक बेटर होती है, माइंड काम होता है, फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। लाइक आई विल से योगा इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। Like if you're practicing yoga regularly, it is so good thing in your life. Yeah. So आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से the most significant physical, mental and emotional benefits योगा प्रैक्टिस के क्या हो सकते हैं? So physically I will say, तो आपका फिजिक बेटर होता है, आपकी स्किन बेटर होती है, आपके पोस्चर्स बेटर होते हैं। बेसिकली स्किन का कलर आपको चेंज नहीं होता एक टाइम के बाद, लेकिन मतलब एक टाइम के बाद क्या किसी का भी स्किन कलर सेम रहता है, बट देन आप ग्लो करते हो, यू नो। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम सही तरीके से इनहेल एक्सहेल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे योगा पोस्चर्स होते हैं जो हमारे बॉडी में बहुत चीजों को हेल्प करते हैं। लाइक हमारे हेयर को हेल्प करते हैं, हमारे स्किन को हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी फिजिक अच्छी होती है। तो फिजिकली तो जो चीजें दिखती है आपको वो दिख रही है, मेंटली आप फोकस ज्यादा कर पाते हो, है ना। आप मेंटली, अब स्टूडेंट्स है जैसे, तो वो अगर आप डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एक टाइम पे फोकस कर पा रहे हो किसी चीज पे, तो वो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है। इमोशनली अगर आप देखोगे तो वो इमोशंस को भी हैंडल करने में बहुत हेल्प करता है योगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्कआउट्स या योगा मेडिटेशन, ये लोग खासकर इस चीज की तरफ अट्रैक्ट तभी होते हैं जब उनके लाइफ में ऐसा कुछ होता है, नो। एंड वन ऑफ द रीजन मेरा भी ये था कि जब मैंने रेगुलर प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसे पर्सनल रीजन थे जिसके कारण फिर मैं योगा में इंडल्ज हो गई एंड देन रेगुलर प्रैक्टिस किया। तो डेली प्रैक्टिस बहुत हेल्प करता है आपको इमोशनली किसी चीज में होल्ड करने में, लाइक अपने इमोशंस को हैंडल करने में वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है। Definitely. How did you integrate the principles of yoga into your interactions with others and the environment? तो आई थिंक इसका आंसर मैं दूंगी लाइक कैसे मैं योगा के प्रिंसिपल्स को देखती हूँ। तो सपोज कोई भी एक पोस्चर है, राइट, तो मुझे उसे अचीव करना है, मैं क्या करूंगी, मैं उसके लिए प्रैक्टिस करूंगी। आई नो, सपोज हेड स्टैंड कर रही हूँ एंड देन आई विल ट्राई टू डू हेड स्टैंड, देन आई फॉल, ट्राई अगेन, देन आई फॉल, ट्राई अगेन एंड फॉल, and one day I will achieve that posture, right? One day I will stand in my head or in my hands, like whatever I'm doing, headstand or handstand. So मैं इस प्रिंसिपल को बहुत यूज करती हूँ अपनी लाइफ में कि लाइक ठीक है, अगर आपके सामने कोई भी चैलेंज आती है आप उसे करो, बार बार ट्राई करो, एंड जरूरी नहीं है कि वो एक बार में हो जाए, बट ऐसा भी नहीं है कि वो कभी होगा ही नहीं। अगर आप उस चीज को लेकर कंसिस्टेंट हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, आप चाहते हो अचीव करना, आप कर लोगे।
तो मैं ये अपने आसपास चीजें यूज करती हुई है अपने लाइफ में, किसी भी चीज, लाइक कोई भी चैलेंजेस आती है। एंड देन योगा और भी बहुत चीजों में हेल्प करता है, लाइक किसी चीज को समझने में। आप इंटरेक्ट कर रहे हो किसी से, योगा बेसिकली आप जब योगा प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी डाइट बहुत सही हो जाती है। आप पहले बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो एंड ऑल, बट जब आप रेगुलर प्रैक्टिस में आते हो ना, एक टाइम के बाद ऐसी हो जाती है कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है जंक फूड। तो आई थिंक मेरी लाइफ में एक वो इंसिडेंस भी आया है कि मेरी डाइट बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, ठीक है। तो मैं अब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हूँ बाहर की चीजें। एंड बट हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी इंसान वर्कआउट योगा कर रहे हैं तो अपनी डाइट को बहुत ज्यादा मेंटेन करें, क्योंकि एक टाइम पे देखता है कि हम पहले जंक फूड एंड ऑल खाते हैं, फिर हम ध्यान नहीं देते। जब हम ध्यान देने लगते हैं तो जंक फूड तो कट आउट कर देते हैं, बट इसके साथ साथ हमें हेल्दी डाइट भी लेनी होती है, तो वो बहुत मेंटेन करते हैं। यही है। Okay. So, how did you address common misconception about yoga in your teachings or practices, and how can it be avoided? तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो ये है कि आप फ्लेक्सिबल हो इसलिए आप योगा करते हो। बिकॉज मैं भी बहुत सारे पोस्चर्स डालती हूँ तो लोग ऐसा कहते हैं कि यार तुम बहुत फ्लेक्सिबल हो इसलिए कर लेती हो, हमसे नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि मुझसे वो पहले से होता था, मैंने बहुत बहुत प्रैक्टिस की है, तब जाके मैंने वो एक पोस्चर ट्रेन किया है। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि आप फिजिकली मतलब फ्लेक्सिबल हो, या फिर अगर आप में बहुत स्ट्रेंथ है तो ही आप कोई पोस्चर्स कर सकते हो। लाइक सपोज वी आर डूइंग आर्म बैलेंसेस, तो आपको आर्म बैलेंस करने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए आपके हाथों में, तो वो आपको रेगुलर प्रैक्टिस से आएगी, ऐसे ही नहीं आएगी। तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों को कि अगर आप फ्लेक्सिबल हो, आप स्ट्रांग हो तो ही आप कुछ पोस्चर्स कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। एंड ऐसा नहीं है कि आपको डेली प्रैक्टिस में वैसे हार्ड पोस्चर करने होते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड थिंग ये है कि लोग एज के बारे में सोचते हैं कि हाँ बच्चे लोग हैं अच्छे से कर लेते हैं, हम सब बड़े हो गए अब नहीं होगा। योगा का कोई एज नहीं है, कोई Right. 5 साल में स्टार्ट कर सकता है, 3 इयर्स। छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है बहुत अच्छे से करते हैं। एंड इनफैक्ट बहुत बड़े लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत लेट से स्टार्ट किया बट अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लाइक मेरे क्लास में एक लेडी है, शी इज अराउंड 60 इयर्स, 55 और 57, या 57 इयर्स ओल्ड। वो आती है एंड उन्होंने जब स्टार्ट किया, उन्होंने फर्स्ट डे आके क्लास में बोला कि मैं आज तक कभी योगा नहीं की हूँ, बट आई वांट टू स्टार्ट नाउ, मुझे पता नहीं होगा कि नहीं। तो मैंने कहा ओके मैम, यू कैन ट्राई। उन्होंने एक क्लास किया, वो सेकेंड डे आई, वो 3 दिन तक रेगुलर थी। मैंने उनको थर्ड डे कॉन्ग्रेचुलेट भी किया कि आप 3 डेज तक कंटिन्यूस हो, एंड वो अभी भी क्लास में आ रही है, लाइक इट्स ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, तो शी इज कंटिन्यूसली डूइंग इट। तो स्टार्टिंग में उनका सूर्य नमस्कार भी ठीक से नहीं हो पाता, अभी वो सूर्य नमस्कार उन्होंने 3 महीने में पूरा अच्छे से कॉन्कर कर लिया। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने इसलिए कर लिया कि हाँ ठीक है उन्हें आता था, उन्होंने इतने लेट से स्टार्ट किया बट स्टिल वो रेगुलर थी, इसलिए कर लिया। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि आपकी एज होनी चाहिए परफेक्ट, या बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हो कहीं से भी, कैसे भी। एंड इस चीज को हम दूर कर सकते हैं अवेयरनेस के थ्रू। नो, अभी स्कूल्स में भी बहुत ज्यादा इनिशिएट हो चुका है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे ऐसे आए हैं कि नहीं, आप गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा उसे अवेयर कर रही है लोगों को। इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ भी रही है और काफी और जरूरत भी है ये चीजें फैलाने की। यू कैन एनी टाइम यू वांट, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। डेफिनेटली। सो आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में योगा प्रैक्टिस कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, स्पेशली टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से, अगर आप कुछ बताएं तो? टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बोले तो एक्चुअल में अभी ऐसा हुआ है कि टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से योगा बहुत ज्यादा चलन में है इंडिया में। पहले जितने थे उससे ज्यादा अभी है। बेसिकली आप अगर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो योगा प्रैक्टिस करते हैं, योगा क्लासेस करवाते हैं, या योगा के फोटोज और वीडियो डालते हैं। तो ये चीजें पहले यहाँ नहीं थी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की वजह से और ज्यादा आगे बढ़ रही है। द गवर्नमेंट की जो एक स्कीम्स है एंड
इंटरनेशनल योगा डे भी इतने बड़े लेवल पे सेलिब्रेट होता है। आप इंडिया के बाहर देखो, योगा का बहुत इन्फ्लुएंस है। एंड कहीं ना कहीं वो भी एक चीज है जो इंडिया में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। कि ऐसे इंडिया में मिसकंसेप्शन या आप कह लो ये ऐसा है कि इंडिया की जो चीजें हैं उन्हें वैल्यू ना देकर बाहर की चीजों को लोग बहुत वैल्यू देते हैं। तो एक्चुअल में इंडिया है योगा का, बट बाहर के लोगों ने इतना ज्यादा किया है कि अब उस चीज को वो लोग कहते हैं कि अरे ये लोग भी योगा करते हैं। तो अब ये चीज आ चुका है कि ठीक है, योगा हमारा है, हमने स्टार्ट किया, बाहर के लोग फॉलो कर रहे हैं, तो अब वो चीज हम भी फॉलो कर रहे हैं। एंड मैं तो यही कहूंगी कि सोशल मीडिया ने इस चीज को बहुत हेल्प किया, क्योंकि मैंने भी अपनी कंटिन्यूस क्लासेस सोशल मीडिया के थ्रू की थी। लॉकडाउन में मैंने स्टार्ट किया था, तो ये ऑनलाइन क्लासेस मैंने पूरा सीखा ऑनलाइन का। अभी भी मैं टीच करती हूँ तो ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। होलिस्टिक योगा जहाँ से मैंने सीखा हुआ है उसके सारे क्लासेस ऑनलाइन होते हैं। तो एक्चुअल में ऑफलाइन बैच है ही नहीं कोई, सारे क्लासेस ऑनलाइन होते हैं। तो ऑल ओवर कंट्री से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो टेक्नोलॉजी लिटरली बहुत हेल्प कर रही है इस चीज में कि योगा का इन्फ्लुएंस बढ़े, और टाइम के साथ और भी बढ़ने वाला है बहुत ज्यादा। Definitely, I think. Okay. So, how important is the relationship between teacher and student in yoga, and what should students look for a teacher? I think a good connection is what needed. No, and also टीचर भी चाहिए अच्छे, नो डाउट, मैं ये नहीं बोलूंगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं भी जो एक ऐसा है ना कि हर लोग टीचर नहीं हो सकते। तो कुछ लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, बट हर लोग टीचर नहीं हो सकते। तो मैं कुछ ऐसे टीचर से भी मिली हूँ जो लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, बट उस लेवल पर नहीं सिखा सकते। तो वो सारे टीचर्स में नहीं होते। तो मुझे लगता है एक कनेक्शन भी ना टीचर से बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं होलिस्टिक योगा में जब आई थी, तो एक वो टीचर का कनेक्शन नहीं था जो मुझे इतने दिन तक कंटिन्यू किया। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था, हमारे होलिस्टिक योगा में एक टीचर थी, तो उनके साथ भी मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा था। देन उसके बाद भी जो टीचर्स थे, स्पेशली महेश सर, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, वो बहुत कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स से। तो जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे, आप स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं समझोगे, स्टूडेंट्स शेयर नहीं करेंगे आपकी बात, अपनी बातें। तो अगर वो आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे, तो आप उसे सॉल्व कैसे करोगे? एंड मैंने बोला ना, योगा इज द अल्टीमेट सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। लाइक अगर आप प्रैक्टिस करते हो, स्पेशली आपको बॉडी में अभी हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं लोगों को, तो अगर आप अगर आप टीचर से शेयर नहीं करते हो, एक कनेक्शन फील नहीं होता, आप कनेक्ट नहीं करते हो, तो आप कैसे कोई चीज शेयर करोगे? तो एक वो कनेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स के साथ। राइट। तो आप कुछ ऐसे फनी और एम्बेरेसिंग मोमेंट्स शेयर कर सकती हैं जो यू हैड ऑन और ऑफ द योगा मैट? ओके, ऑन द योगा मैट तो फिर मैं कहूंगी पिंच मयूरा एक आसन है। तो आई वाज ट्राइंग टू डू दैट पोज इन माय क्लासेस, सो दैट वाज अ ऑनलाइन क्लास। तो बेसिकली हम जब क्लास करते हैं तो हम म्यूट कर देते हैं अपने आप को, ठीक है, एंड टीचर बोलते हैं, क्योंकि फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स है, सब अनम्यूट हो जाएंगे, वैसे प्रॉब्लम होगी। तो मैं जब कर रही थी, तो मैं अपने टीचर से बात कर रही थी, एंड मैं लाइक मेरा माइक ऑन था, तो मैंने सारे लोग हेडस्टैंड प्रैक्टिस कर रहे थे एंड मैं पिंचे मयूरी की प्रैक्टिस कर रही थी। देन आई सडनली फॉल, एंड मैंने इतनी जोर से चिल्लाया, उसमें से 4 लोग और गिर गए। कह रहे क्या हुआ ऐसा देखने के लिए। तो वो बहुत फनी था, क्योंकि मैंने माइक भी ऑफ नहीं रखा था और सारे लोगों ने ऐसे सुना जोर से, एंड देन 4 लोग और गिर गए। तो क्लासेस में कभी कभी ऐसा होता है कि हम सीख रहे होते हैं, हम जैसे होता है ना, आप बैक बेंडिंग कर रहे हो एंड आपको हाथ हाथ टच करना है पैर से, कभी कभी नहीं हो पाता। तो हमारे टीचर ऐसा कहते हैं, स्वाति थोड़ा सा ट्राई करो, मुझे मन कर रहा है कि मैं बाहर आके हाथ ऐसे स्ट्रेच करके तुम्हें पकड़ के वो करवा दूं। बट एक होता है ऑनलाइन क्लास में, ऑब्वियसली आप वो चीज नहीं कर सकते। फिजिकल क्लास में होता है कि बहुत टीचर सपोर्ट करते हैं आपको प्रॉपर पोस्टर करने में। तो ऑनलाइन क्लासेस में वो बहुत फनी इंसिडेंट होता था कि ठीक है, आप अकेले हो, आप गिर रहे हो, आप उठ रहे हो, गिर रहे हो। तो वो सब मजा आता है। ऑफ द मैट फनी एक्सपीरियंस, आई वाज ट्रैवलिंग इन कोलकाता। ओके, सो आई वाज ट्रैवलिंग इन कोलकाता इन बस। तो मैं घर लौट रही थी कोलकाता से, एंड मुझे ट्रेन पकड़नी थी। तो मैंने
ऑफ कोर्स रेलवे स्टेशन जाने के लिए मैं बस ले रहा होता है, तो कोलकाता के बसेस में बहुत भीड़ होती है, लाइक तो लाइक बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो मैंने क्या किया, अपना बैग निकाल के सामने, जैसे आप पीछे से नहीं रख सकते क्योंकि बैग आपकी कभी भी कट जाएगी है ना, तो फॉर योर सेफ्टी आप बैग आगे कैरी कर लीजिए। तो मैंने ऐसे बैग कैरी किया, एंड मैं ना बॉयज जैसे वॉलेट यूज करते हैं ना, मैं वैसे वॉलेट यूज करती हूँ। तो मेरे जीन्स में मैंने वॉलेट रखा हुआ, तो मैंने वो वॉलेट निकाला, एंड एक्चुअल में बस में इतनी भीड़ थी ना कि आप ना कुछ भी नहीं देख सकते, लाइक इतने सामने सामने ऐसे एकदम सटे हुए लगे जाते हैं। तो मैंने ना अपना वॉलेट निकाला कि बाई चांस गिर गई मेरे पॉकेट से या कुछ भी, तो मैंने वॉलेट निकाला और अपने बैग में डाल दिया था। एंड सडनली पास के एक अंकल ने मुझे देखा, एंड इज लाइक कि अच्छे घर से दिखती हो, ये सब काम करती हो। तो मुझे लगा यार ये क्या हुआ। मैंने कहा क्या, बोले कि किसका पर्स लिया तुमने, मेरा है। अब क्योंकि वो वॉलेट ऐसा और होता है ना, आप इतनी भीड़ में हो, आप ऐसे निकाल रहे हो, किसी को पता भी नहीं चलता, एंड आप फुल्ली टायर्ड हो, तो आपकी शक्ल भी कैसी रहेगी, ऐसे एकदम मतलब होता है ना नॉर्मल सी शक्ल बना के आप ऐसे कि हाँ ठीक है, अभी आपको देखना भी है आप कौन से स्टेशन पे उतर रहे हो, कहाँ उतर रहे हो। एंड देन मैंने ऐसे वॉलेट निकाला, तो उन्होंने देखा एंड ऐसा पूछा, मैंने कहा ये क्या था, मैंने बोला मेरा है। तो बोलते तुम्हारा है या किसी का लिया तुमने, तो फिर मेरे वॉलेट में मेरा आधार कार्ड एंड ऑल। फिर मैंने वो उनको दिखाया कि अंकल ये मेरा ही वॉलेट है, मैं ये वॉलेट यूज करती हूँ। देन फिर मैं, तो वो बहुत ही फनी इंसिडेंट था, मतलब लाइक कि नो नो मिसकंसेप्शन भी होते हैं ऐसे लोगों कि नहीं ठीक है ये बॉयज का वॉलेट है तो वो वही यूज कर, बट आई एक्चुअली लाइक टू कैरी दैट, दैट्स व्हाई आई यूज दैट। Thought that you were stealing. Yeah, actually he thought that I was stealing someone's wallet. That was an embarrassing moment or funny moment? What do you consider it? Both. I will consider it both. Okay. So, how has yoga impacted your relationships with family, friends, and the community? Yoga actually helped me to control my anger issues so much. I still remember I used to like shout at my home, like literally shouting at my brother. I still shout at him because I enjoy. But that time I was in anger. Right now, I do that just for enjoyment. So yeah, इमोशनली योगा ने मुझे बहुत हेल्प किया है चीजों को कंट्रोल करने में, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में, एंड चीजों को समझने में। That is like we used to react on situations, and now Hmm. it's like okay, I try to respond rather than reacting. Hmm. There is a huge difference now between reacting and responding. When you respond, you just try to understand others' perspective also. Then you are like okay, आपका ये पर्सपेक्टिव हो सकता है बट सामने वाला का ये पर्सपेक्टिव। तो मैं अपने फैमिली एंड रिलेशंस किसी में भी बात करूं तो आई थिंक ये मुझे बहुत हेल्प किया योगा ने कि मैं सारी चीजों को थोड़ा बेटर समझती हूँ, उसे रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट करना। यस। Okay, so what advice would you give to someone who is hesitant to try yoga for the first time? Started. There are lots of free classes. I'm teaching free. Holistic yoga is teaching free. I'm basically teaching holistic yoga. So holistic yoga is providing 2 classes, morning and evening 3 classes. Just started. You know, when you start, you will see. And you know, I believe in a line like what you seek is seeking you. So if you start, it will automatically come to you. So this is the formula I use, and I always tell everyone like मुझे हमेशा ऐसा लोग कहते हैं कि ठीक है तुम फ्लेक्सिबल हो इसलिए कर लेती हो, मुझसे नहीं होगा। मैं सबको कहती हूँ यार स्टार्ट करो, जरूरी नहीं है आपको सारे टफ पोस्चर्स करने, आप सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करो। सूर्य नमस्कार में 2 ऐसे पोस्चर्स हैं जो बहुत इजी हो जाते हैं। लाइक सूर्य नमस्कार आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज करवाती है, फुल बॉडी एक्सरसाइज। आप वार्म अप कर लो, आप सूर्य नमस्कार कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो, 5 मिनट मेडिटेशन, दैट्स इट। इतना काफी है। अगर आप स्टार्ट करने के लिए इतना बहुत है, बट स्टार्ट करो, एटलीस्ट 20 मिनट्स प्रैक्टिस करो, नहीं हो रहा तो 5 मिनट से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो। Okay. तो योगा फॉर यूनियन को
फ्यूचर में आप कहाँ देखना चाहते हैं? टेल अस सम फ्यूचर प्लान्स रिलेटेड टू दिस। Currently, I'm just focusing on social media, like Instagram page मुझे grow करना है अपना. And future में if I open my classes and all, I will do it holistic yoga. Currently, I'm teaching also in the holistic yoga. So yes, if I start my offline batches and all, then of course I will keep that same name. And uh, इस नेम के पीछे भी एक्चुअली स्टोरी ये है कि योगा फॉर यूनियन मैंने इंस्टाग्राम पे जब हम सर्च करते हैं ना तो हमें यूजर नेम नहीं मिलता, तो इसलिए फिर मैंने वो न्यूमेरिकल अंडरस्कोर यूज किया है. बट एक्चुअली में ये होता है योगा फॉर यूनियन, FOR एंड यूनियन. बट हमें वो सारी चीजें ऐसे इंस्टाग्राम पे मिलती नहीं है, तो फिर हमें ऐसे ट्राई करना पड़ता है कि ठीक है हम क्या करें कि नाम शॉर्ट भी रहे एंड देन अच्छा भी लगे. For right now, my future is like current plan is to focus on social media because I was not active, like quite active in the social media right now. But yes, I'm focusing on social media right now. After that, after 1 or 2 years, I will focus, like I will try to start my offline classes. Okay. So, do you follow any brand? There are so many brands I follow. Like about what type? Like clothing brand or any makeup brand, cosmetics brand. What Any? is your favorite brand, and what do you like about it? Okay. I use one product, cosmetic product of Minimalist, and I really like that product because it actually suits on my skin. So I don't use too much makeup products and all. So that name, that Minimalist, I really like that name. कि वो अपने ब्रांड में ना अपनी चीजें बता रहे हैं कि आप बहुत मिनिमल यूज करो एंड योर स्किन इज लाइक गोइंग टू बी गुड एंड ऑल. तो मुझे वो प्रोडक्ट सूट भी करती है एंड प्लस मुझे उसका नाम भी बहुत अच्छा लगता है. दैट नेम मिनिमलिस्ट, ये आप अपने नाम के थ्रू बता रहे हो कि आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हो, Okay. कि आपका मोटिव क्या है. हम्म. ये बताइए कि ब्रांड कहते किसे हैं, और या फिर कौन ब्रांड बन सकता है? ब्रांड तो कोई भी बना सकता है. आपने किसी पर्टिकुलर चीज का नाम रखा, कुछ ओपन किया एंड देन आपने बना दिया कि ठीक है ये मेरा ब्रांड है. बट उस ब्रांड को एक्चुअल में ब्रांड बनाना इज अ डिफिकल्ट थिंग. एंड फिर वो ऐसी ब्रांड होनी चाहिए कि लोग हर वैसे सिमिलर चीज को उस ब्रांड के नाम से जाने. फॉर एग्जाम्पल आप ले लो हार्पिक. ओके, हार्पिक कंपनी का नाम है ना. टॉयलेट क्लीनर एक चीज है, हार्पिक ब्रांड का नाम है. लोग जाते हैं मार्केट में, उन्हें कोई सा भी ब्लू बॉटल दिख जाए, दे विल से हार्पिक है. तो इस तरह से ना बहुत सारी ऐसी सिमिलर चीजें हैं जो इस लाइक उन्होंने अपना एक नाम ही रख लिया है. लोग उस एक नेम को लेकर फिर वो सारी चीजें, जैसे आप कोलगेट ले लो, कोलगेट इज ऑल्सो ब्रांड नेम. एंड हम जो यूज करते हैं वो टूथपेस्ट होता है, तो लोग टूथपेस्ट नहीं बोलते. उन्हें कोई सा भी लेना होगा, लोग दुकान पे जाके कहेंगे भैया एक कोलगेट देना. तो कुछ ऐसे कंपनीज हैं पहले की जिन्होंने अपना एक्चुअल में एक ब्रांड बना के रखा हुआ है कि राइट. भाई यही है. अब तो लोग अगर कुछ और भी मांगेंगे, किसी और ब्रांड का भी भले सामान यूज कर रहे हो, लेकिन एक पर्टिकुलर जो नेम है वही यूज कर रहे हैं. तो इस लेवल तक अपने ब्रांड को पहुंचाना हो तो वी कैन से कि हाँ ठीक है ये ब्रांड है. वरना अगर ऐसे ब्रांड बनाना हो तो ब्रांड कोई भी बना सकता है. बट ऐसा कि आपके ब्रांड से ही वो पर्टिकुलर चीज ही आपके नाम से जानी जाती है, अब जाके वो प्रॉपर ब्रांड बन जाती है. अकॉर्डिंग यही है. सो हाउ मच इज अ नेम इम्पोर्टेंट? क्या वैल्यू बहुत रखता है important. आज के टाइम पे नाम किसी भी बिजनेस का, सोशल मीडिया पेज का, या कोई भी प्रोजेक्ट के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ, क्योंकि
वही एक चीज है जिसकी वजह से लोग आपको याद रखेंगे। कि सब लोगों ने ना प्रोडक्ट से यूज किया होता है, तो किसी भी चीज का प्रोडक्ट इज अ मेन थिंग, और थिंग, तो आपका वो प्रोडक्ट होता है कि आप क्या दे रहे हो। बट अगेन, मैंने जैसे पहले कहा ना कि आपका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार अगर आपके नाम ने मार्केट में बना लिया अपना नाम ना, तो फिर चलती है उस इंसान की। क्योंकि वो ऐसा है कि एक तो आप उस चीज से इन्फ्लुएंस भी करो कि लोग सुने, और था ना एक पर्टिकुलर चीज, वो नाम सुने और उन्हें बस वो वही याद आए कि अरे Yeah. ये, तो Hmm. कनेक्ट होना चाहिए। प्लस वो क्या है, वो क्या सर्विसेज दे रही है, उसके पीछे मोटिव क्या है, वो सब चीजें उसके नाम से पता चलनी चाहिए, Hmm. होना चाहिए। इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से फिर बाकी आगे टाइम के लिए आपको लोग याद रखते हैं। So we are moving to our last segment. ओके, So we like you to know some like your some personal favorites about you. So ओके, are you ready for it? या श्योर। So the first one is day or night? Day, मॉर्निंग, morning. मॉर्निंग, आई लव मॉर्निंग। Okay, reading a book or yoga? I like actually both, but if you say you have to choose one thing, then I will choose yoga. You can choose Although, both. no, if in its first position, it's yoga, but I like to read book. But if yoga and book, then I will choose yoga. Your favorite song? Favorite song, uh, Sukoon. There is a song named Sukoon. I forgot that singer name, but that song is so connecting to me. One of my teachers sent that song to me, and that song is my favorite. I will recommend you to listen that song. Okay. Your role model? Actually, I don't have a particular role model. Like I have influences of many people in my life. Mostly all of them are my teachers. I have like 2, 3 teachers in my life. They are very important. Like one teacher, like my first favorite teacher is my college professor. Then again, I came to meet one teacher when I was preparing for some exams. So he was one of my like best teacher, and then currently Mahesh. It's like all of the three are like my role models. I really like all their personality in different ways. When you talk about yoga and all, I will like I get influenced by myself. When you talk Hmm. about adventurous life and all, I will get influenced by Jagtap sir. He's one of my teacher. If you talk about life experiences and while making decisions and like handling people, so I will I am influenced by my professor Deva ma'am. So yes, I'm not a particular role model, but yes, I have influences of my teachers. So if I would like to become like them, I would definitely become like them. Okay. A dream place where you want to travel? I want to visit everywhere, but currently I want to go to Rishikesh. Okay. Do you have any childhood memory? Childhood memory. I was so naughty during my childhood. Kind of badmash बच्चा. तो मेरी सारी मेमोरीज ऐसी ही है, बदमाशी करती है। आई विल नॉट शेयर दैट मेमोरीज, बट यस बहुत सारी ऐसे मेमोरीज है कि आई विल शेयर वन। यू नो आई हैव माय वन एल्डर सिस्टर। तो ऐसे बच्चों में होता है ना कि आपके घर पे कोई भी चीजें आती है तो आप 2 लोग हो तो 2 चीजें आती है। तो Yeah. वी आर इन यूकेजी क्लास में थी मैं, एंड मेरी सिस्टर थी 1 क्लास में, सी सीनियर टू मी। तो हमारे लिए कलर्स आते थे ना वाले, ऐसे क्रेयॉन्स छोटे छोटे। तो वो कलर के बॉटल लाए थे, एंड मैं खेलते खेलते सडनली गिर गई और मेरे हाथ से क्रेयॉन्स गिरे। 2, 3 क्रेयॉन्स ऐसे थे जो टूट गया। तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि ठीक है मेरे 2 टूटे हैं, तो एक टूटा हुआ तू ले ले, एक टूटा मेरे पास रहेगा, दोनों के बराबर बराबर। एंड शी इज लाइक कि मैं क्यों दूं, मैंने सब तोड़ा, तूने खुद तोड़ा है। तो मुझे गुस्सा आ गया, एंड देन मैंने सुबह उठ के उसके भी 2 क्रेयॉन्स तोड़े ताकि वो बराबर हो जाए।
तो मैं बचपन में ऐसे लेवल में बदमाशी करती थी, मेरे घर पे अभी भी लोग मुझे ऐसे घर पे सबसे बदमाश बच्चा बुलाते हैं, अब मैं नहीं हूँ। Yeah, this happens. It's all बचपन about में me. बहुत कुछ होता है जो हम लोग करते हैं, बड़े होते होते वो सारी आदतें खत्म हो जाती है हमारी. Okay, so nice talking to you. Thank you so much, Tabassum, for having me here. It's my pleasure. Bye. So we'll try to meet in our next phase of the podcast over coffee and chai. Yeah, sure. I would like Okay. to be a part of that. So would you like to add something about us? About you guys. What I even say? You guys are doing great things. Yeah, just go for it. और Okay. क्या तारीफ करूँ मैं अपनी? Thank you. Thank you so much. I hope you would achieve what you had dreamt about your Yoga for Union. Thank you so much. Then we should- Thank you so much. Thank you.